Good afternoon, everyone. Today our topic is the new possibilities of communication. Okay, ice age communication. Today's age can be redefined as another ice age. ICE. It means information, communication, entertainment. Information. The age of information was brought in a major way by the image taking, making technologies of the 19th century via the camera. Earlier, one could talk about a place or a person only after a first-hand experience, but by looking at the photograph was able to get an analog idea of the place or the appearance of the person. This was not a direct experience, but a new experience of information. Yes. So similarly, through recorded sounds, one could got an idea of a person's voice, or could listen to a description of anything. So which was limited to the written reports or letters before this invention. In a way, this was the extension of human sight and hearing. Information has been a privilege denied to the masses till the early part of the 20th century. To know about the society in general and the world at large, one had to have the privilege of being highly educated and with means and opportunities at one's disposal for travel. This was being highly educated and with means and opportunities at one's disposal for travel. This was the being highly educated and given a very few that in rich European nations in the colonized world. So today the spread of mass media. You all know about the mass media. What is mass media? What is communication? Communication is to deliver your message. You are a sender and another one is receiver who receive your message. But your interaction should be clear. Your voice should be clear, and your words, your stanzas, anything, whatever you want to say, everything should be clear, should be simple, and should be easy. That can be easily understood by each and everyone. If we talk about today, the spread of mass media highly remove the cause of complaint as far as the availability of channels for spread of information are concerned. But the question remain about the quality and efficiency of the information. Same thing. We all always talk about the किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, आपका जो तरीका है बताने का सबसे इम्पोर्टेंट है. जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करने की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि आपकी इंफॉर्मेशन सही सटीक होनी चाहिए, एकदम सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज. डोंट ट्राई टू बी कि मैं बहुत ही क्रिएटिवली कुछ बोल दूं. नहीं, देयर आर अगर आप बहुत ही क्रिएटिव वे से कुछ बताना चाहेंगे, आप कविता संग्रह नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह का उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, आप एक सीधी सादी न्यूज को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सीधी सादी न्यूज को व्यूअर्स तक, लिसनर्स तक एंड ऑडियंस को बता रहे हैं. सो योर कॉन्सेप्ट इज द वे, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन. यू हैव टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, यू वांट टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन. बहुत जल्दी, बहुत बेहतर तरीके से आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है. दिस इज द आइस एज इंफॉर्मेशन. आइस एज मीन्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन, communication and entertainment. Information should be clear but should be simple and should be easy to understand. Don't try to create any शेरो शायरी or something like that. हम लोग अगर किसी के प्रोफाइल को बयां कर रहे हैं या किसी, तो हम लोग उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेरो शायरी के जरिए उस चीज को जाहिर कर सकें. लेकिन अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो एक आम इंसान से जुड़ी है, तो उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से, सिंपल तरीके से आप बताएं, ना कि उसमें बहुत ज्यादा उसको आप उलझा दें. देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग से, कि हाँ बिगनिंग से बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं. कोरोना, this is a live example with front of us. What is corona? What is covid? एक ऐसी महामारी जिससे आज पूरी दुनिया त्रस्त है. ठीक है, अगर मैं कोरोना के सबसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट वैक्सीनेशन, लेकिन मैं बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट कर दूं कि फर्स्ट डे ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तब तक व्यूवर मेरा, लिसनर मेरा बोर हो चुका है ना. मैं उसको पूरी बैक की इन्फॉर्मेशन बता दी जा रही हूँ. मेरा सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, मुझे आज की इन्फॉर्मेशन बतानी है. व्हाट इज द लेटेस्ट, व्हाट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे अभी बताना है. कि लाइक जैसे हमारे पास कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, या जो भी और वैक्सीन पे काम हो रहा है या और आई हैं, कुछ और भी हैं, तो अभी लेटेस्ट क्या है.
Yeah, if people wanted to know about the third wave, and I'm talking about only first wave from the beginning, so that's not an idea. Idea is you can go to the point जो अभी जरूरत है. Be quick and on the spot. जब हम मीडिया पर्सन्स की बात करते हैं तो क्विक रहना उनकी एक क्वालिटी, एक खूबी है. अगर आप क्विक हैं देन यू बिकम अ ग्रेट मीडिया पर्सनालिटी. अगर आप क्विक नहीं हैं, चीजों को उलझा रहे हैं, तो दैट नॉट बी आपके प्रोफेशन को, आपके काम को वो चीज सूट नहीं कर रही है. सो शुड बी क्विक. Okay, today the spread of mass media largely removed the cause of complaints as far as the availability of channels for spread of information concerned. But the question remains about the quality and efficiency of the information. Quality should be better, quality should be good of your information. But there is no doubt that media and the capacity of creating and sharing information in many ways has important political and humanist dimensions. हम देखते हैं कि बहुत तरीके से हम लोग information को spread कर रहे हैं. चाहे रेडियो है, चाहे टीवी है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, एंड बहुत से पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है बहुत आसानी से, इजीली. मगर we can benefit from understanding the view of two major contemporary thinkers and social scientists, Majid Teherajan and Anandis Amartya Sen, in this contest. Majid says that three megatrends characterize our own era and perhaps the rest of the 21st century: globalization, regionalization, and democratization. He says that globalization and regionalization are proceeding rapidly, aided by technical progress and global and national institutions. However, democratization is lagging somewhat behind in the post 1991 world. He sees democratization to have become an unmistakable force throughout the world. Amartya Sen considered the development of democracy as a distinguished contribution of the 20th century and adds that the challenge of 21st century is the completion of democracy. He believes that democracy and associated political freedom are a significant part of human freedom, and democracy enhances political attention that weaker people get. Third one is, in democracy, formation of values and priorities takes place through open public discussion and representative participation. So democracy in essence is the process of setting up just institutions of the state with the checks and other mechanisms. So notwithstanding the shallowness in the media many a time, we still see many positive aspects of free media. If I talk about before the internet, so models of mass communication had following features before the internet. It was process of broadcasting message created and transmitted by a few vast number of receivers and organization, corporations, huge technical infrastructure and large scale investment and revenue model. The change paradigm due to the internet. Empowering an individual to post data on the internet. You can easily post any information on the internet. आज से पहले, इंटरनेट से पहले, जब तक फेसबुक नहीं था, लिंक्डइन एंड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आपके पास, इंस्टा एंड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स वर नॉट अवेलेबल ऑन दिस प्लेस. तो आपके पास क्या था? कुछ नहीं था. आप लोग पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, मेल कर पा रहे थे सिर्फ. बट नाउ अ डे you are empowering an individual to post data on the internet. Next, information message in one medium triggering off activity in the others. Next, many sources of the same information. एक ही information के बहुत सारे sources हैं. So we can easily cross check them with these resources. So many sources you have for the same information, and the distribution of the information between individuals on an unprecedented, and the distribution of the information is not difficult now. You can easily distribute any information to all the peoples in your groups, especially. Global scale rapidity of opinion generation on a local, national, and global scale, and the socio-political implications of the new information order, the strengthening of democracy. So if I talk about Ice Age information, Ice Age media in short, Ice Age information, communication, and entertainment. So it's complete package of communication. It's a complete package of information. It's a complete package of media, today's media. Our first priority is to spread the news to the peoples, but it should be clear, it should be simple, it should be summarized,
and it should be easy to understand by each and every person. But and सबसे important जो चीजें हैं, credibility. It should be credible, it should be factual, facts should be clear. अगर आप कोई भी चीज स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर स्प्रेडिंग एनी न्यूज, तो आपकी न्यूज फैक्चुअल भी होनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं, इस बात से काम नहीं चलेगा कि आपने जल्दबाजी में उसको स्प्रेड कर दिया. दैट्स ओके, यू आर द नंबर वन चैनल, आई एग्री. अगर कोई चैनल ये कहता है कि हाँ हमने सबसे पहले स्प्रेड कर दी, दैट्स ओके, अग्री विद दैट. लेकिन आपकी न्यूज एकदम क्रेडिबल, प्लस आपकी न्यूज फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड होनी चाहिए. आपको कभी भी न्यूज के साथ इस तरह से नहीं करना कि कुछ भी आपको समझ आया आपने उठाकर उसको डाल दिया, लेकिन उसमें फैक्ट्स एडेड होने चाहिए. जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अभी मैं बता रही थी आपको कि किस तरह से अगर हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर लास्ट में आके मैं बताऊंगी कि हाँ ये न्यूज है, इससे क्या है कि जो अटेंशन सीकर्स जो होते हैं, अटेंशन है वो लूज हो जाती है व्यूवर्स की. वो आपके चैनल पे स्विच नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम. हालांकि हो सकता है एक आध एंकर ही ऐसा हो, लेकिन फिर भी वो आपके चैनल से दूसरी जगह फटाफट से स्विच कर लेंगे. दे गो टू अनदर चैनल्स, मतलब वो ट्राई करेंगे हाँ किसी और चैनल पर हम लोग विजिट करते हैं और देखते हैं वहां पर क्या है. बट इफ यू वांट कि आपका व्यूअर आपके पास रहे, तो आपको चीजों को, आपको उन्हें रीडर्स को रीड करना है. न्यूज रीड करने के साथ साथ आपको रीडर्स के, सॉरी, आपके जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड को रीड करना है. व्हाट दे वांट, उन्हें किस तरह की न्यूज चाहिए. आप देखते हैं आजकल चैनल्स पे बहुत ज्यादा फास्ट न्यूज आती है. क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम बहुत, जैसे ठीक है, एक ओल्ड एज पीपल हैं, 70+, 65+, 70+, 75+, जो ये एज के लोग हैं, इनके पास ठीक है, ये लोग अभी घर पर हैं, टीवी देख रहे हैं. खैर अभी तो हम सब लोग हैं, लेकिन हाँ ये सब लोग अगर घर पर हैं, इनके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम है, वो अपना टाइम टीवी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं. वो लॉन्ग न्यूज भी देखेंगे, सब कुछ. वो मोबाइल फोन्स पे भी न्यूज देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं वेबसाइट्स पे, ओके. लेकिन सम पीपल हु आर वर्किंग and they have no time for news and TV and all that, then they want quick news. मुझे फटाफट से 15-20 न्यूज पता चल जाए 5-10 मिनट के अंदर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है. तो उन लोगों के लिए ये राउंड अप स्टार्ट किए गए, जिनका कॉन्सेप्ट, जिनके पीछे सिर्फ रीजन ये था कि न्यूज को फटाफट तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से उसे डिलीवर किया जाए. It can be easily and in a simple manner, in a simple way that can easily understood by each and every person. Your stories, your news not be so difficult, not be so complicated, should be simple, should be easy to understand, and should be, writing skills should be clear. If your writing is clear, so it can be easily understood by everyone. Firstly, you should have an idea should be clear in your mind. If idea is clear in your mind, so you can easily write it on the paper, on or type on the screen, whatever you want. अगर हम चीज़ों को पहले समझते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके बाद हमने उसको लिखा, फिर हो सकता है उसका मीडियम कोई भी रहा. लिखकर मैंने उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, लिखकर मैंने उसको टीवी पे टेलीकास्ट किया, लिखकर मैंने उसको रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया. मीडियम इज वेरी वेरी करता है मीडियम अलग अलग चीज़ों में, लेकिन आपने उस चीज़ को लोगों तक कैसे पहुंचाया, ये चीज़ मैटर करती है. लेकिन क्या चीज़ पहुंचाई, वो उससे ज़्यादा मैटर करती है. योर न्यूज़ शुड बी, जैसे मैंने पहले बताया, चीज़ें उसी तरह से होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए. शुड बी सिंपल, समराइज, ताकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है. We are not talking about editorial pages. We are not talking about some, main articles of the newspaper. Not. I'm talking about or I'm not talking about any big half an hour shows of any channel. I'm not talking any particular show. I'm not talking about any particular newspaper. I'm saying कि हाँ, न्यूज इस तरह से होनी चाहिए कि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए. तभी आप देखते हैं कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स आते हैं जो हम लोगों के पास आते हैं, बहुत ही क्विक न्यूज़पेपर्स पहले आने शुरू हुए थे. आई डोंट नो अबाउट अभी रिसेंट, लेकिन हाँ कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसे क्विक न्यूज़पेपर्स आते हैं जो इजीली हम लोग उसको रीड कर सकते हैं. वो शॉर्ट करके उसमें न्यूज़ बताई जाती है. और बुलेटिन्स भी ऐसे होते हैं, इवन रेडियो पे भी ऐसे बुलेटिन्स होते हैं, लॉन्ग बुलेटिन्स होते हैं, प्लस राउंड अप्स होते हैं, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी पर्सन. ठीक है. सो हम जब भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जब भी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि हम किसी को किस तरह प्रेजेंट करें. अगर आपको कोई न्यूज़ प्रेजेंट करता है, तो आपका आपका क्या रीज़न होता है, आपका क्या होता है कॉन्सेप्ट कि हमें कैसी न्यूज़, मुझे न्यूज़ ऐसी मिले जो मैं
पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो। अभी जैसे हाल ही में साइक्लोन यास की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इफेक्ट किया, कैसे कैसे किया। यू ऑल वांट द रीसेंट। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताना शुरू कर दूं कि तब कयास लगाए जा रहे थे कि इन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, यहाँ यहाँ पर इस तरह से घेराबंदी, यहाँ पर इस तरह से नाविकों की टीम्स, यहाँ पर इस तरह से ये सब टीम्स आ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो आपके लिए भी यूजलेस होगा, मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ा सा आर्टिकल नहीं लिखना है इसके लिए। मुझे इंस्टेंट न्यूज सर्व करनी है अपने व्यूवर्स को, अपने लिसनर्स को, अपने यार अपने रीडर्स को। तो उसके लिए मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से उस चीज को पहुंचाना है। आइस एज में हम अगर आइस एज की बात करते हैं तो ये आइस एज के ही एग्जांपल्स हैं कि हाउ टू गिव क्विक न्यूज, हाउ टू डिलीवर क्विक न्यूज, हम अपनी न्यूज को किस तरह से। एंड अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात हम लोग करें और अगर वहां पर हम कहें कि पिक्चर्स के साथ हम अगर किसी न्यूज को बताते हैं, आप देखते होंगे, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो दैनिक भास्कर या और न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें आता है कॉलम ना जरा हटके काइंड ऑफ, उसमें क्या है, अ पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। उसपे बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स के जरिए ही साथ में 3-4 लाइनर, 3-4 लाइनर न्यूज होती है बस। दैट वाज अ वेरी वंडरफुल न्यूज, मतलब हम लोगों ने जब पढ़ी वो बहुत ही अच्छी न्यूज हुआ करती थी उस समय की। मेरे ख्याल अभी आती होंगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कुछ समय पहले तक वो आ रही थी न्यूज। तो उसमें क्या है, वो एक पिक्चर है जो कहते हैं थाउजेंड ऑफ वर्ड्स आपको बताने को तैयार है। एक पुतला खड़ा हुआ है, लेकिन वो पुतला कहाँ खड़ा है, क्यों बनाया गया, क्या रीजन था, वो किस शेप में बनाया गया है, किस किस तरह की आकृति उसके बॉडी पर है, और वो किसको वो किया गया है, मतलब किस क्या मैसेज दे रहा है हमें। तो ये सारे क्वेश्चन उसके बीच में है। या अगर मैं कोई ऐसी, मैंने ऐसा कोई प्लेस दिखा दिया जहाँ पर कोई जैसे एक लेटेस्ट में न्यूज अभी पड़ी है कुछ दिन पहले, एक पार्क है किसी नदी के ऊपर, एक नदी के ऊपर एक पार्क है, और उस पार्क के ऊपर क्या है, मतलब सब कुछ है, अवेलेबल है, जिससे जो भी हमारी चीजें हमें चाहिए, मतलब एंजॉयमेंट के लिए एवरीथिंग अवेलेबल फॉर किड्स, फॉर यूथ, फॉर एवरीवेयर। तो वो क्या है, वन पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, वो आपको बहुत कुछ बता रही है पिक्चर। तो आपको इसी आइस एज में जाना है, आइस एज जो मीडिया है उसकी तरह देखना है कि कम चीजों में आपको किस तरह से ज्यादा बात को लोगों तक पहुंचाना है। वर्ड लिमिट है, आपको वर्ड लिमिट सेट करनी है अपनी, कि मुझे इतने में ही इतनी बात अपनी कहनी है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो रेडियो है। आपको किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, हम लोगों ने अभी आइस एज मीडिया की बात की, अब हम मीडिया के उन चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत ही सिंपल हैं। और हम लोग जब स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रिप्ट हम सब लोगों को लिखनी आती है, आप सब लोगों को भी लिखनी आती है स्क्रिप्ट, यू ऑल नो दैट हाउ टू राइट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग फॉलो तो करते हैं लेकिन कई बार नहीं हो पाते हैं। ये सबको पता है कि 5W1H, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आप सब लोग जानते हैं। हम इंटरव्यूज की बात करते हैं, आपको इंटरव्यूज में पता है, अगर हम इंटरव्यू की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ओपन क्वेश्चंस एंड क्लोज क्वेश्चंस, हाउ टू डील विद देम। अगर हमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है तो कैसे लिखनी है, कोई एक्सीडेंट है उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है तो कैसे लिखनी है, कोई साइक्लोन आ गया जैसे अभी हाल ही में यास है, इसकी स्क्रिप्ट करनी है तो कैसे करनी है। लेकिन इन सब का बेसिक क्या है, इन सब को अगर हम लिखते हैं तो इन सब का जो है तरीका क्या है। अगर हम न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर व्हाट अबाउट स्क्रिप्ट, script is the basic thing if I talk about communication, because script is the basic part of the communication. And when we talk about the new possibilities of communication, so it never be successful without script. Script is the main thing. तो ये स्क्रिप्ट शुड बी सिंपल, जैसा मैं पहले बताया। एंड आपको वो सभी क्वेश्चंस को, ये नहीं है कि सिंपल करने के चक्कर में आप सभी क्वेश्चंस को एक ही सेंटेंस में डालकर या 2 सेंटेंसेस में डालकर उसको 3-4 सेंटेंसेस में कंप्लीट कर दो, नहीं। आपको क्वेश्चन सब अलग अलग सेंटेंसेस में लेने हैं, आंसर सबके अलग अलग सेंटेंसेस में ही देने हैं, लेकिन हाउ टू डील विद, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से पहुंचाना है, अपनी बात को बताना है।
एंड नेवर बी टू स्कैरी, उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं बनाना कि, और हम जब भी स्क्रिप्ट, अगर हम न्यू पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तो स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एंडिंग पॉइंट पे ना पहुंचो, मतलब कोई सवालिया निशान, कोई क्वेश्चन मार्क पे स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ना, हमें स्क्रिप्ट को कंप्लीट करके देना है। अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो पॉसिबिलिटीज तब होंगी अगर हम टीवी के जरिए, कैमरा के जरिए, अपनी पिक्चर्स के जरिए, एंड क्योंकि जब हमारे पास टीवी की हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास पिक्चर्स, even a single picture speak thousand words, so we have a bundle of pictures, they can easily understand, it can easily understood by each and every person. पिक्चर्स हमें बहुत कुछ बता देती हैं, सिर्फ पिक्चर्स के जरिए ही, अगर हमारे पास वर्ड ज्यादा नहीं भी हैं तो सिर्फ पिक्चर्स के जरिए हम अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां पर उस समय कैसे हालात रहे होंगे। कोई प्लेन क्रैश हो गया, किसी जगह पर कोई बांध टूट गया, कोई रिवर में दिक्कत आ गई, कुछ भी हो गया, तो वहां पर हमें सिर्फ इमेजेस देखकर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द रीजन, मतलब ऑफ द प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज द, मतलब हाउ इट हैपेंड, है ना, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. So it depends to your script that you should always give. You should always write it in a simple way and trying to reflect the whole idea with the script. There is no doubt that media and their capacity of creating and sharing information in many ways has important political and humanist dimensions. इसमें कोई डाउट नहीं कि मीडिया में बहुत सारे तरीके हैं, देन यू कैन इजीली शेयर. अगर हम लोगों ने पहले की बात की, बिफोर द इंटरनेट, इफ आई टॉक अबाउट बिफोर द इंटरनेट, तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, बट आफ्टर द इंटरनेट वी हैव सो मेनी वेज. जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आप फेसबुक के ज़रिए, अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, एंड इसके अलावा अगर हम इंस्टा की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पर हम इजीली अपनी बात को, ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हमें क्रिएट कर दी गई हमारे लिए कि हम आसानी से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे. अगर आप देखें तो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिंक्ड हैं, linked to each other. If I talk about Google, if I talk about Google is the main thing. हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, दैट कैन इजीली कुछ ही देर में आपको फेसबुक पर वो चीज़ें नजर आने लगेंगी. कैसे? लिंक्ड विद ईच अदर. मैंने ट्राई की कुछ राइम्स बुक्स या बुक्स फॉर किड्स, तो थोड़ी देर बाद मैं फेसबुक ओपन करूंगी तो उसमें मुझे वो सभी बुक्स के रेट्स, प्राइजेस, एंड कहाँ कहाँ किन बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है, वो सब दिखना शुरू हो जाएगा इजीली. ये नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा रहा है, कोई हाइड कर रहा है, ये आपके लिए इजी किया जा रहा है ताकि आप इजीली उस चीज को पता लगा सकें, है ना. दैट कैन नॉट, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, टेक इट इन अ राइट वे, कि आप किस तरह आसानी से चीज़ों को ईजी कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से ग्रैब कर सकते हैं. आज से पहले हम लोगों को फेसबुक पर अगर हम बात करें तो फेसबुक नहीं था हमारे पास कुछ साल पहले तक, काफ़ी साल पहले तक, अभी तो बहुत साल हो गए फेसबुक को भी आए हुए. तो उस समय हम किस तरह से चीज़ों को समझते थे? सिर्फ टीवी, फ़ोन भी एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे हम लोगों के पास, एप्पल फ़ोन नहीं थे, सिंपल नॉर्मल छोटे फ़ोन्स थे. अगर हम इस तरह की बात करें तो ये आए हुए भी काफ़ी साल तो हो चुके हैं, और इनके ज़रिए हमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है. हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोगों तक सीधा डायरेक्ट पहुँचती है, एंड दे कैन ईजिली, एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर दोज पीपल नाउ अ डेज व्हेन वी आर एट होम. सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर पीपल. वी कैन इंटरैक्ट थ्रू दिस काइंड ऑफ एप्स. बहुत सारी ऐप्स हैं जो आज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे. आपके प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं. सो क्या है, इंटरनेट के आने से हमें वो सभी चीज़ें हेल्प मिल पाई हैं. So like if I talk about this web camera, it is very useful for me. If I talk about Microsoft Office, Teams, if I talk about Teams, so I can easily interact with you people, and you people can easily, understand what I'm saying. So we can, it's a base. What is this? This is a new possibility of communication. This is the new possibility of communication. So we can easily interact. Our interaction is so simple. मतलब बहुत ही simple तरीके से हम लोग interact कर पा रहे हैं. लेकिन अभी से कुछ साल पहले तक अगर हम बात करें तो हम लोग एक दूसरे को अगर फोन भी करते थे तो हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते थे. रिसीवर्स के जरिए हम लोग बात करते थे. बट डे बाय डे
न्यू पॉसिबिलिटीज कम्युनिकेशन में क्रिएट की जा रही हैं ताकि इसका बेनिफिट काफ़ी काफ़ी हद तक लोगों को पहुंचे, और पहुंच भी रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे शोज कर रहे हैं, ऑनलाइन शोज कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑनलाइन वर्क, वी पीपल आर डूइंग ऑनलाइन स्क्रिप्ट्स एंड ऑल, आप लोग भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। सो हाउ इट हैपन, हाउ इट इज पॉसिबल? अगर अभी भी हम उसी एज में होते, आइस एज की जगह अगर हम उसी एज में, पिछली एज में अपनी होते, या उसी टाइम में अगर हम होते, तो हम लोग इस तरह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, थैंक्स टू इंटरनेट की वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ईच वन एंड इंटरैक्ट विद ईच वन, विद ईच अदर, with the help of this kind of possibilities, new possibilities of communication. If I talk about some other things, if I talk about some other possibilities, so okay, information and messages, one medium triggering of activity in the others, and the you if you want to post any data, ठीक है, you want to post anything, पहले क्या था, आप सिंपल एक मैसेज टाइप करते थे पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप एंड बहुत सारे इस तरह की एप्स आ गई कि आपके मैसेजेस को इजीली बाकी लोगों तक पहुंचाया जा सका। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं, सो थ्रू दोज ग्रुप्स वी कैन इजीली इंटरेक्ट। जूम है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम लोग आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर द सम न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि ये नहीं है कि इनके कुछ बैड इफेक्ट्स नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर न्यू पॉसिबिलिटीज के एडवांटेजेस हैं तो इनके डिसएडवांटेजेस भी साथ में हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जो है आज के टाइम में हमारा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग सोशल मीडिया। फेसबुक है, अब कोई भी कंपनी, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी टीवी चैनल, सबके सोशल मीडिया साइट्स हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई अवेलेबल है। इसके अलावा ट्विटर पर अवेलेबिलिटी है, इंस्टा पर है, सब लोग हैं, बिकॉज दे कैन इजीली इंटरैक्ट विद आर ऑडियंस, दे कैन इजीली इंटरैक्ट विद देयर लिसनर्स, रीडर्स, ऑडियंस जो भी है, ताकि वो उनसे जुड़ पाएं। और ऐसा नहीं है लोग जुड़ नहीं रहे हैं, अब हम लोग हैं, हम लोग कोई भी अपना सॉन्ग रिकॉर्ड किया, हमने यूट्यूब पे पोस्ट किया, एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हम अपने खोल सकते हैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पोस्ट किया, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम का जरिया है, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। सो क्या है, दिस इज द वे, दे हैव देयर ओन यूट्यूब चैनल्स, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, एंड लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। शॉपिंग, शॉपिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये क्या है, ये न्यू पॉसिबिलिटीज हैं हम लोगों की इन कम्युनिकेशन, जो हमें एक दूसरे से जोड़ रही है। जहाँ पर हम लोग काफ़ी हद तक, अभी जैसे हम लोग घरों में हैं, हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ, थ्रू सोशल मीडिया we can easily interact with each other with the help of these kind of social media groups, with these kind of some social media sites. So before the internet and after the internet, या in the age of internet, अभी आफ्टर तो बात नहीं कर सकते, बिफोर बात कर सकते हैं, उससे पहले क्या था और अभी क्या है, प्रेजेंटली क्या है विद इंटरनेट। प्रेजेंटली है कि मेनी सोर्सेज ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले बताया, एक ही न्यूज़ है, उसको मैं फेसबुक पे भी जाकर पता कर सकती हूँ, इंस्टा पे भी मुझे वो न्यूज़ मिल सकती है, या कुछ पिक्चर्स हैं किसी की, मुझे फेसबुक पे मैं चेक करूँ मुझे मिल जाएगी, मुझे मेल पे मेरे आ जाएंगी, मुझे इंस्टा पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लिंक्डइन की बात करते हैं, इस तरह की सोशल साइट्स की बात करते हैं, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ हेल्प देती हैं, एंड दीज आर द एक्चुअल न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी से कि हाँ क्या बदला है, बट वी डोंट नो कि एवरी डे, डे टू डे लाइफ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक टाइम था जब आपके पास प्रिंट आउट, आज आप इजीली प्रिंटर्स के थ्रू निकाल रहे हैं, या फिर आपके पास बहुत इजीली आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, पेजर एट दैट टाइम, एंड आपके पास क्या होता है, प्रिंट मतलब न्यूज़ आ रही है आपके पास, है ना, आपको प्रिंट आउट्स आ रहे हैं, लेकिन ये कि आज आप खुद ही इंटरनेट पे सर्च करो और वो चीज़ को आप निकाल सकते हो। मतलब चीज़ें बहुत बदली। एक टाइम पे था कि आप लोग पिक्चर्स कट करके उनको पेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में आपको इंटरनेट पे सभी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, यू कैन इंसर्ट एनी वन ऑफ देम। हाँ, कुछ के राइट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम है कि आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं।
तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों क्या है, ये न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज मैंने कोई आर्टिकल किया, मैंने आर्टिकल से क्या किया, लिंक करती हुई पिक्चर को इंटरनेट पे सर्च किया, वहाँ से पुट किया, लिया, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। ये क्या है, ये है कि मैंने अपने उसको एक पिक्चर के साथ पोस्ट किया, दैट बिकम्स वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल। और वो जो न्यूज़ या स्टोरी मैं लोगों तक पहुंचा रही हूँ, आसानी से समझ आ रही है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर पिक्चर। सो दीज आर द सम न्यू थिंग्स जो अभी इंटरनेट या कम्युनिकेशन की इस एज में डे बाय डे चेंज हो रही है, ऐड हो रही है। अब हम लोग हैं एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट। एंड विदाउट इंटरनेट, अभी इंटरनेट कनेक्शन अगर कट जाता है, सो वी कैन नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर विद द फोन, बट फोन भी इंटरनेट से ही है। So internet is very useful for the nowadays, and it helps us to connect with each other, and it creates some new possibilities, not for us, even for other peoples also, है ना। एंड हर एक शख्स ने अपने हिसाब से उस पॉसिबिलिटी का यूज किया है, इस्तेमाल किया है। कोई ऑनलाइन शोज कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं, एवरीथिंग। सो इसमें किसी तरह का ये नहीं है कि आप कहीं पर रुक गए हैं किसी चीज़ को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, एंड एवरी डे, डे बाय डे, media create some more new possibilities of communication for you people. Okay, so everything, so in this webinar, so I think everyone easily understood by this, and thanks to everyone for this webinar. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.